वेट नहीं करें किसी का भी, स्टार्ट नहीं, अब करते शुरू करिए। मेडिटेशन। नहीं, अब हाँ, मेडिटेशन शुरू करिए। Be ready for Priksha meditation. Now select a comfortable posture for your body from the following. Simple cross-legged posture, full lotus posture, half lotus posture, and diamond posture. And select any one of the mudras of your hands. Gyan mudra ya Vitarag mudra. Position of knowledge. Keep your right hand on your right knee and your left hand on your left knee. Keeping the palms turned up. Let the tip of the index finger touch the tip of the thumb with slight pressure between them. Keep the other finger straight. Position of omniscience. Keep your left hand in the central part of your lap. And put your right hand on the top of the left hand. Both palms should be facing up. Close your eyes softly with your spine and neck in a straight line. We start the meditation session with the recitation of Mahaprandhvani. Inhale fully and then exhale deeply as long as you can. Exhaling slowly, produce the sound through the nostril like the buzzing of a bee. Keep the other fingers straight. Sorry, inhale fully and then exhale deeply as long as you can. Exhaling slowly, produce the sound through the nostril like the buzzing of a bee. Close your mouth, tongue hanging freely inside the mouth. If thoughts are coming to your mind, touch your tongue to the palate and try to hold your breath for a while. Thoughts will go away. Again, start to perceive your breath. Aphorism of them. Sampikhaye apaga mapainam. See yourself
through yourself of perception and realization of the self practice Priksha meditation. Make a resolution. I am practicing Priksha meditation for purification of my psyche. Relaxation with yellow, blue color. Focus your mind on your big toe of your right foot. Penetrate your mind inside the toes up to the top of the head and keep the mouth closed, tongue hanging freely inside the mouth. Throughout your body and suggest to your mind that it relax, relax, relax. From your big toe up to the top of the head, each and every muscle, nerve, tissue, cell is being relaxed. Relax, relax, relax. Give up your body, let your body become limp. Practice total relaxation with self-awareness. Your breath has become quiet and calm. Experience complete peace of mind, inner silence. Your body and mind have become free from all kinds of stress, tension, pain. Try to feel peace, inner peace, inner peace. Try to control your tongue and hold your breath. Om.
3 बार ओम का उच्चारण। Breathe in, breathe out. When you breathe in, your mind goes in. When you breathe out, your mind comes out. You can recite with Om mantra. Take one long breath. Meditation session is over. Rub your palms and charge your face. And open your eyes. Om Arham meditation session is over. Time is over. Shivam Shuddhibuddham Param Vishwanatham Na Devam Na Bandhum Na Karmani Karita Na Angam Na Sangam Na Ichha Na Kamam Chidanandirupam Namo Vitaragam Chidanandirupam Namo Vitaragam Chidanandirupam Namo Vitaragam। वीतराग पुरुष को मेरा श्रद्धा शत नमन। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। अंतर विराजित निर्देशिका जी और जिज्ञासा से जिज्ञासित हमारा बर्मिंगम जैन आश्रम समाज। आज हम आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज दिस? तितिक्षा जी, कैन यू गिव मी आंसर प्लीज? यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज दिस टुडे, दिस क्वेश्चन, ओके? सॉरी, मैंने इसे कभी नहीं देखा है। Oh, so nice. Never mind. Next. Atul bhai, can you give me answer please? What is this? Atul bhai, can you unmute yourself please? The whole picture? Yes. No, actually, I don't know. Very nice. Never mind. Arvind bhai, can you give me answer? What is this? Precisely दीप क्या है वो मैं भी नहीं कह सकता, जैसे यूनिवर्स की तरह है। Okay, so nice, very nice. Universe means लोक, ये हमारा लोक है। जैनिज्म में लोक की इस प्रकार चर्चा की जाती है। आपसे जो क्वेश्चन करना है वो आज आपको पिक्चर के आधार पर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? और अब हम 5 मिनट क्वेश्चन करके फिर आज हमें आत्मा की बात भी करनी है और उसके साथ हमें भक्तामर का 12th वाला श्लोक भी करना है। और साथ ही साथ नेक्स्ट मंथ हम कोशिश करेंगे नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो हम 1 मंथ पूरा एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये शायद हमारा 3rd है और नेक्स्ट 4th आत्मा का पूरा करके फिर हम मंत्रों पे चर्चा करेंगे।
मंत्र कैसे करना चाहिए, मंत्र किसे कहते हैं, मंत्र क्यों करते हैं, कौन सा मंत्र क्या होता है, ये बीज मंत्र क्या होते हैं, ओम क्या है, रिम क्या है, श्रीम क्या है, इनका अपन पूरा डिटेल से, और इनका कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो कहाँ पे इफेक्ट होता है, कौन से मंत्र हीट पैदा करते हैं, कौन से मंत्र बॉडी में बहुत ज्यादा मतलब ठंडक को बढ़ाते हैं, तो ये सब चर्चा अपन पूरा करेंगे, कौन सी दिशा से क्या होता है, कौन सा मंत्र करते हैं, तो इसकी 1 महीना अपन पूरी चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा यूनिवर्स यानी लोक। अब लोक किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन दी जाती है षड द्रव्यात्मक को लोक, यानी जिसमें 6 द्रव्य होते हैं उसको हम लोक कहते हैं। अभी 6 द्रव्य की चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए आपको अलग से तत्व ज्ञान के हम कभी क्लास करेंगे। ऐसे तो हमारा हर थर्सडे को 9:15 to 10 o'clock एवरी थर्सडे को होता है, तो उसमें हम यही सब चीजें समझाते हैं 25 बोल के आधार पर ही। गति क्या है, अभी हमारा देवता का चल रहा है, तो इस पिक्चर में 3 लोक हैं। वो कौन कौन से, नीचे का जो भाग है उसको हम बोलते हैं अधोलोक, यहाँ पे लिखा हुआ गुजराती में, ये है हमारा अधोलोक। और यहाँ पे ये 7 जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, ये जो 7 फ्लोर्स हैं ये नारकी के हैं, जो नीचे के स्थान होते हैं। हम जिस पृथ्वी पर है, हमारी छत के ठीक नीचे 7 नारकी का स्थान है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके ये लास्ट 7वीं नारकी वो सबसे हाईएस्ट डीप में है नीचे, ठीक है। तो ये ऐसे 7 नारकीज हैं, आपको 1 to 7 नंबर भी है, शायद समझ पाए तो। और यहाँ पे जो नाम है वो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, महातम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, तो ये 7 नारकी के नाम है। और इनके और भी नाम आते हैं, ये इनकी जातियां हैं और इनके नाम भी हैं, ठीक है। वो और ज्यादा टफ है जो आपको याद नहीं होंगे, ये तो फिर भी इजी है तो याद हो जाएगा। ये जो बीच का भाग है इसको हम बोलते हैं मध्य लोक, ठीक है। मध्य लोक में क्या है, यहाँ पे ये सुमेरु पर्वत है, ये 1 लाख योजन का, ये टोटल जो लोक है वो हमारा कितना है, किसी को पता है ये टोटल लोक? अर्चना जी, कैन यू गिव मी आंसर प्लीज, टोटल लोक कितने योजन का है? अर्चना जी, शायद वो कहीं बिजी ना हो, बीच बीच में समझिए, आज उसका कुछ ऐसा है। ओके कोई बात नहीं। ये जो 1 लाख 1 लाख नहीं रेणु जी, पूरा जो लोक है वो 45 लाख योजन का है। 45, ओके। 45 लाख जो सारा किया समावो, समझावो मैं भी समझना चाहूं, देवो देवो जी डगर मर सिद्धि सदन चढ़ पाऊं। यानी हमारा 45 लाख योजन का ये लोक, और 45 लाख योजन की क्या है, सिद्ध शिला। आपको इतना डीप में नहीं जाना है, बट इतना सा समझे कि हम कहाँ रहते हैं, ये मध्य लोक में। ये मध्य लोक में अमेरिका, लंदन, इंडिया, सारे पूरी की पूरी पृथ्वी के जितने भाग है सब इसमें। आप सोचोगे इतना छोटा सा भाग और इसमें इतने सारे, और इसमें हमारा अस्तित्व कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका लंदन कहाँ है वो भी नहीं पता, आपका घर कहाँ है, और आपका अस्तित्व तो इसमें समुद्र में एक बूंद जितना है। इस लोक को समझने के बाद में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अहंकार क्या चीज का करे, हमारा तो लोक में अस्तित्व ही नहीं है। सिर्फ घर में हमको लगता है हम सब कुछ है, लेकिन लोक की दृष्टि से देखे तो हमारा कोई एकदम समुद्र की एक बूंद, और एक बूंद आपको पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती समुद्र के सामने। तो वैसे ही हमारा जो अस्तित्व है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। हम ज्यादा गहराई में नहीं करेंगे। तो ये हम कहाँ रहते हैं, मनुष्य कहाँ रहता है, तो मध्य लोक में रहता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मध्य लोक और यहाँ पे ये अधोलोक। अब आगे जाओ तो ये है ऊर्ध्व लोक, मीन्स ऊपर का लोक। तो हम इस लोक के आधार पर आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमारी जो आत्मा की शक्ति, हमें इसको आत्मा के साथ रिलेशन करना है, इसीलिए मैंने इसको समझाया, ठीक है। तो हमारी जो आत्मा है, ये ऊपर का जो लोक है वो क्या है, ऊर्ध्व लोक है। ऊर्ध्व लोक मतलब यहाँ पे देवगति का स्थान है। और आगे जाके आपको ये जो दिख रहा है, इसके देवलोक के ठीक ऊपर सिद्ध शिला है, और इस सिद्ध शिला पे सिद्ध जीव रहते हैं। और इसमें भी ये सारे 9 ग्रवैहिक, वैमानिक, 5 अनुत्तर विमान के देवता। इसका और गहराई से है, इसको समझने के लिए आपको थर्सडे की नाइट की क्लास लेना। तो अभी हमारा देवगति का ही चल रहा है, तो देवता कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से देवता मोक्षगामी ही होते हैं, वो 100% तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे। तो इसका सबका डिटेल्स अभी नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ हमें ये समझना है कि हमारी आत्मा जो अभी मध्य लोक में है, और मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक की यात्रा कैसे करें।
उसके लिए ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स अपनाएं जिसके आधार पर हमारी आत्मा कभी भी नीचेगामी अधोगामी न बने, यानी अधोलोक में न जाए, नीचे की ओर न जाए, हमारी आत्मा हमेशा अपलिफ्ट मतलब ऊपर की ओर बढ़ती जाए। तो उसके लिए हमें क्या चिंतन करना है और क्या क्या ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी आत्मा को हमेशा ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। इसके आधार पर आपको ये भी समझना है कि हमारी शरीर में, पूरे शरीर में क्या है? प्राण तत्व है। प्राण तत्व मतलब जीवनी शक्ति, जिसको वाइटल एनर्जी कह दो। तो वो वाइटल एनर्जी हमारे पूरे शरीर में है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे पूरे शरीर में वाइटल एनर्जी है और उस वाइटल एनर्जी का जिधर की ओर हमारा प्रवाह होता है उधर की ओर ये वाइटल एनर्जी क्या होती है? चली जाती है। तो आप सबको क्या करना है, जो हमारी आत्मा का है नीचे की ओर, नीचे की ओर का मतलब है कि पदार्थ की ओर, यानी आप सबको पता है कि आपके साथ में क्या चलेगा। आप सबको पता है कि आपके साथ में आपकी करनी चलेगी, आपका ज्ञान चलेगा, आपके कर्म चलेंगे, चाहे वो अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए हो। और उस कर्मों के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, आत्मा न कोई ईश्वर बनाने वाला है, व्यक्ति का निर्माण करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। जैसे वैशेषिक दर्शन में अलग मान्यता है, वेदांत दर्शन में अलग मान्यता है, बौद्ध दर्शन में अलग मान्यता है, वैशेषिक दर्शन में अलग है, मीमांसक दर्शन में अलग है। और इधर हम देखें तो वेस्टर्न कल्चर की अगर हम फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो वहां पे आत्मा का पूरा ही अस्तित्व अलग ही बताते हैं। उसमें चाहे लाइबनिज हो, चाहे डेकार्ट हो, चाहे आइंस्टीन हो, सबकी अलग अलग आत्मा के बारे में मान्यता है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार जो आत्मा की मान्यता है वो क्या है कि आत्मा है वो अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, ये आत्मा के स्वाभाविक पांचों गुण हैं। और इन गुणों के आधार पर व्यक्ति अपनी यात्रा को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, ऊपर की ओर ले जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आज हमें ये समझना है कि हमारी आत्मा कब अधोगामी बनती है, ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसके आधार पर हमारी आत्मा है वो नीचे की ओर जा सकती है। तो उसमें सबसे पहला है कि हमारी आत्मा जब नाभि के आसपास, हमारी चेतना, हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन अगर नाभि नेवल के आसपास रहता है तो 100% हमारी जो चेतना है वो अधोगामी नीचे की ओर जा सकती है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो नाभि का भाग है वहां पे साइंटिस्ट के अनुसार, अगर हम देखें साइकोलॉजी के अनुसार, फिजियोलॉजी के अनुसार, तो वहां पे हमारे एड्रिनल और गोनाड्स दो ग्लैंड है। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो जितना ज्यादा एक्टिव होता है व्यक्ति के भीतर में उतना ज्यादा एसिड क्रिएट होता है, और जितना ज्यादा एसिड क्रिएट होता है व्यक्ति उतना ज्यादा नेगेटिव इमोशंस में चला जाता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे मेंटल रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर हमारी इमोशनल हो। किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम जितनी भी क्रिएट होती है वो हमारे थॉट्स के आधार पर, और थॉट्स को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन सिक्रेशन करता है और जिसके आधार पर हमारी आत्मा विषय भोगों की ओर प्रवृत्त रहती है, जिसके आधार पर हमारी आत्मा जो चीज हमारी नहीं है उसके प्रति भी अपना मानती है। यानी जिसको हम मोहनीय कर्म कह दें, अज्ञान कह दें, या अमूढ़ता कह दें, या फिर प्रमाद कह दें, सब एक ही शब्द है, भाव एक ही है, अर्थ अलग हो सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, तो सबका भाव यही है। आप सबको पता है कि आपके साथ कौन चलेगा? ना आपकी पत्नी चलेगी, ना आपका घर चलेगा, ना आपका पैसा चलेगा, ना आपकी गाड़ी चलेगी, ना मोबाइल चलेंगे, लेकिन सबके प्रति कितना अटैचमेंट। अभी आपको कोई बोले अपना मोबाइल हमको दे दो, समणी जी को जेवीबी में गिफ्ट, तो शायद बहुत बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जब इंसान जाएगा तो 1 सेकंड लगेगा, सब कुछ छोड़ के उसको 1 सेकंड में कुछ भी नहीं देखेंगे, ना मोबाइल देखेंगे, ना कुछ संपत्ति देखेंगे। तो आप सबको पता है कि कोई भी हमारे साथ नहीं चलेगी, हमारी आत्मा हमारे साथ चलेगी। और कहा भी है, चला लक्ष्मी चला प्राणा, चले जीवित यौवनम, चला चले संसारो धर्म एको ही निश्चले। इस संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे पैसा हो, चाहे परिवार हो, सिर्फ हमारी आत्मा हमारे साथ चलेगी। तो हम अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करें। तो आत्मा निरंतर आनंद की यात्रा करती है। आप सबको पता है आप क्रोध में कितने घंटे रह सकते हैं? अपने पत्नी से, अपने बच्चों से नाराज होकर कितने दिन रह सकते? मुश्किल से 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा,
48 मिनट से ज्यादा तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो वापस शांति में आना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा व्यक्ति नेगेटिव इमोशंस में कितना समय तक रह सकता है। 24 आवर्स में से मुश्किल से 1 आवर्स हम नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, 23 आवर्स हम लोग अपने पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं, नहीं तो हमारी आत्मा जी ही नहीं सकती। तो हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद है। और ये जो आनंद है वो कहाँ है? नियर कॉन्शियस ब्लिस, कॉन्शियसनेस ब्लिस टूवर्ड्स इंटरनल हैप्पीनेस। यानी हमारी आत्मा, हमारी चेतना जब आनंद केंद्र के आसपास रहती है तो हमेशा हमें शांति की, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसकी यात्रा हम कैसे करें? तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, आप मंत्रों की साधना करते हैं, आप सामायिक करते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि नीचे के केंद्र में ध्यान करके कभी नहीं छोड़ना है। हमेशा आनंद केंद्र और आनंद केंद्र के ऊपर के सेंटर्स पे अगर हम ध्यान करके छोड़ते हैं, और रात को सोते समय आप लोग विशेष ध्यान दें कि रात को सोते समय आप जो चिंतन लेके सोते हो, पूरी रात आपका जो लास्ट थॉट्स होता है उस थॉट्स को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है, तो पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड उसी बात पे सोचता रहता है। यानी वो चीज आपके भीतर घूमती रहती है 8 से 10 घंटे तक। तो आप एक पहला संकल्प करें कि रात्रि को सोने से पहले हम कभी भी नेगेटिव थॉट्स को लेके नहीं सोएंगे। यानी दूसरा काम, जब भी आप सोए तो आप रात को रिलैक्सेशन, योग निद्रा के साथ, जिसको महाप्रज्ञ जी ने कहा था शिथिलीकरण, यानी सोए रात को तब अपनी चेतना को हमेशा ऊपर की ओर, यानी ऊपर यानी ज्ञान केंद्र या हमारा शांति केंद्र की ओर, वहां पे श्वेत रंग का ध्यान करते करते सो जाएं और संकल्प करें, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अप्पाणम शरणम गच्छामि, अप्पाणम शरणम गच्छामि। और आपको ये नहीं बोलना आए तो सिद्धा सिद्धा सिद्धा, यानी मेरे हर कार्य सिद्ध हो, चाहे वो मोक्ष जाने की भावना हो, चाहे मेरे घर के कोई काम हो, तो हर कार्य सिद्ध हो। तो आप सोते वक्त रात को एक मंत्र बोल के सो सकते हैं, सिद्धा 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 सिद्धा। और अगर एक श्वास में 32 टाइम्स बोलते हैं तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताया था कि सुबह सनराइज के समय जो व्यक्ति सिद्धा 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 एक सांस में 32 टाइम्स बोलने का ट्राई करता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है। सिद्धा मंत्र भली छोटा है, नमो सिद्धाणं का शॉर्ट फॉर्म हो गया सिद्धा। तो आप ये करते हुए सोएं और रात भर आपका ब्रेन आपके शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र की यात्रा करेगा, तो 100% आपकी आत्मा ऊर्ध्वगामी होगी। तीसरी बात है, विशुद्धि केंद्र के आसपास हम अपनी चेतना को अगर लाते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमारी वृत्तियों का परिष्कार होता है। आप सहज कहेंगे समणी जी, वृत्तियों का परिष्कार मीन्स, वृत्तियों का मतलब क्या होता है कि आपकी जितनी भी हैबिट्स हैं उस हैबिट्स में आपको क्या करना है, रिफाइनमेंट करना है। तो क्या करना है आपको, जो आपका कॉन्शियसनेस है वो बेस्ट प्लेस है आपकी वृत्तियों के परिष्कार का। आपने देखा होगा जो हमारा विशुद्धि केंद्र मीन्स थायराइड ग्लैंड, और वो थायराइड ग्लैंड आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसको विशुद्धि केंद्र कह दिया और आज के डॉक्टर्स लोग उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। बात एक ही है, और योग वालों ने इसको विशुद्धि चक्र कह दिया। सब मानते हैं लेकिन शब्द अलग है, स्थान एक ही है। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे, ये समझना है कि अगर आपकी चेतना विशुद्धि केंद्र के आसपास रहेगी तो आपके भीतर में चेंजेस शुरू हो जाएंगे, और चेंजेस शुरू करने हैं तो आपको विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करना है। और उसके साथ 3 संकल्प और। पहला संकल्प, आप अपने टंग को कंट्रोल करें, जीभ की स्थिरता को साधे। क्वेश्चन होगा समझी जी, जीभ को क्यों साधे? क्योंकि आपको सबको ध्यान में रहे कि एक हमारी टंग से 72,000 नर्व्स जुड़ी हुई है हमारी पूरी बॉडी की, सिर्फ एक टंग से। और आपने ये भी सुना होगा प्राचीन जमाने में जो 16 सतियां होती थी, वो 16 सतियां बहुत सुंदर थी, सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने रूप के आधार पर सब शीलवती थी और सब राजा की बेटियां थी। तो एक नेचुरल रूल था कि बहुत सारे राजा उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते थे, और बहुत सारे राजा ऐसे होते थे कि उनके साथ वो सती होती थी तो वो किसी भी पुरुष की वांछा नहीं करती थी, लेकिन वो उनको चाहते थे कि मेरा इसके साथ में कनेक्शन हो जाए। तो बहुत सारे राजा जबरदस्ती बलात्कार करते थे, तो वो महासतियां क्या करती थी, अपनी जीभ खींच के अपने प्राणों को न्योछावर कर देती थी।
यानी अपने शील की सुरक्षा के लिए क्या करती थी, वो सिर्फ जीभ खींच के अपने प्राण न्योछावर करती थी। तो एक जीभ आपने देखा हुआ, जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है उसकी क्यों गले पर करता है, क्योंकि तुरंत उसकी जीभ बाहर आएगी और वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो एक जीभ के आधार पर हमारे सारे थॉट्स क्रिएट का अगर मेन की कहे तो वो क्या है, हमारी टंग। तो आप टंग को 3 टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, आप टंग को होल्ड करके ऊपर लगाएं। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, ज्यादा थॉट्स आए, स्ट्रेस जैसी स्थिति आए, नेगेटिव इमोशंस आपको बहुत ज्यादा सता रहे हो, तो आप अपने टंग को फोल्ड करके ऊपर लगाएं। सेकंड, आप अपने टंग को दोनों टीथ के मिडल में टच करें। और थर्ड, आप अपने टंग को फोल्ड करके नीचे भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने भीतर में जीभ की स्थिरता, और इसके साथ दूसरा प्रयोग है श्वास की स्थिरता। अगर आप श्वास की दीर्घता को साधते हैं तो 100% आपके भीतर में बदलाव आएगा। आपके भीतर में आपका नेचर चेंज होगा, आपका इंट्यूशन पावर जगेगा, आपकी थर्ड आईज ओपन होगी, और साथ में आपकी कुंडलिनी जागरण की अगर आपको साधना करनी है तो ये जो आपकी विशुद्धि केंद्र की यात्रा है वो सबसे बेस्ट की है अपनी कुंडलिनी जागरण करने की। तो इसी बात को हम आगे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट संडे। और नेक्स्ट संडे अरविंद भाई हम कोशिश करेंगे आत्मा का चैप्टर क्लोज कर देंगे। आत्मा के बारे में ऐसे तो आचरण पूरा भरा पड़ा है, बहुत सारे आगमों में आत्मा का विस्तार से वर्णन है, लेकिन जीव के बारे में अगर बताने जाए तो 12 महीना भी कम पड़ते हैं। तो जीव का इतना विस्तार है आत्मा के बारे में, लेकिन हम इतना विस्तार से नहीं, थोड़ा सा विस्तार जाने, साथ में हम इसको अपने जीवन व्यवहार में भी लाएं। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक हमारा चिंतन नहीं बदलेगा, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, तब तक हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें बदलाव लाना है, भीतर के वृत्तियों में परिष्कार करना है, भीतर के इमोशन पर कंट्रोल करना है, और साथ में हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में भी चेंज आए, तो हमारा यह समय और आपकी ये क्लास सार्थक हो सकती है। तो मैं अपनी बात को अभी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप देती हूँ, और आगे जो हमारा भक्तामर का श्लोक, और वो हमारा 12वां श्लोक, 12वां श्लोक ने हमारा 2 संडे ऐसे ही कर लिया। हमने 12वां श्लोक करते करते रह जाते हैं, लेकिन आज तो हमने संकल्प किया था कि 12वां श्लोक कंप्लीट करना ही करना है। तो आज हम 12वां श्लोक करते हैं, ताकि एक एक श्लोक होता रहे, तो निरंतर आपका ये भक्तामर की यात्रा जो अरविंद भाई की इच्छा है वो पूरी भी हो सके। अरविंद भाई ने कहा समनी जी भक्तामर तो नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं तो भक्तामर की ऐसे भी फैन हूँ, तो मुझे तो भक्तामर बहुत अच्छा लगता है। आप बोलो दिन भर भक्तामर कराना तो भी तैयार हूँ। तो ये भक्तामर अपने आप में एक पावरफुल स्तुति है भगवान ऋषभ की। तो मैं चाहती हूँ आज हमारी रेणु जी उच्चारण करेंगे इस 12वें श्लोक का। रेणु जी काफी अच्छी हेल्प करते हैं हमारी क्लास में बच्चों को सिखाने में। तो आइए रेणु जी, आप भी एक बार उच्चारण कीजिए। ओमरम ओमरम समनी जी बंदामिन मम स्वामी। यह शांत राग रुचि बिह परमाणु बिस्त्वम निर्मापित त्रिभुवने कललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यनवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। वेल डन, 100% राइट रेणु जी, मेनी मेनी थैंक्स। बहुत बहुत चेंज किया आपने तो, एकदम ये वर्ड पे बहुत मेहनत किया था। पन्य व पृथ्वी कितनी मिस्टेकें बोलते थे फर्स्ट डे में, और आज में तो आप में आकाश पाताल जितना अंतर आ गया। बस ऐसे ही अरविंद भाई को शुद्ध करा दीजिए और उनको भी अपने साथ लर्न करा दीजिए। तो आज हम 10 मिनट लास्ट के लर्न भी करेंगे, कोशिश करेंगे, हम थोड़ा फास्ट करके आपको करवा रहे हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, प्रभु के यहाँ पर फिजिकल बॉडी का वर्णन किया है कि जो प्रभु का शरीर है भगवान ऋषभ का, वो कौन से एटम बम से, कौन से एटम से बना हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि शांत राग रुचि भी ही, यानी शांत राग रूपी परमाणुओं से आपका त्वम, यानी आपका जो शरीर है वो कौन से परमाणुओं से बना हुआ है। तो 9 प्रकार के रस होते हैं, हास्य, कारुण्य आदि।
रुद्र भय, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो कौन से परमाणुओं से बना हुआ है? तो शांत राग रस। क्योंकि बाकी सारे के सारे, चाहे वो रुद्र रस हो, चाहे भय रस हो, चाहे हास्य हो, चाहे श्रृंगार हो, वो रस तो कैसे हैं? टेम्परेरी, आपको थोड़ी देर के लिए सुख और शांति की अनुभूति कराते हैं, लेकिन उसके बाद में आपके दुख जुड़ा हुआ है। और ये शांत राग रूपी रस है, वो परमानेंट रहने वाला है। आपने देखा होगा, व्यक्ति शांत है वो ज्यादा समय तक रहता है, खुशी तो थोड़े समय की होती है, लेकिन आनंद है वो परमानेंट होता है। तो भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? शांत राग रुचि परमाणुओं से युक्त है। निर्मापित मीन्स निर्मापित किया गया, आपका शरीर है वो बनाया गया है। त्रिभुवनैक ललाम भूत, यहाँ पे दे दिया हे तीनों भुवन के एक ललाम भूत, मतलब एक सुंदर तिलक आप हैं और आपका शरीर है वो शांत राग रुचि परमाणुओं से, शांत राग रूपी सुंदर परमाणु, रुचि भी मतलब सुंदर, सुंदर परमाणुओं से आपका शरीर है वो निर्मापित है तीनों लोक में। फिर दूसरी बात कह दी कि यत्ते समान अपरम नई रूपमस्ति। यत्ते, ते मतलब उस प्रभु के शरीर के जैसा न अपरम रूपम अस्ति, न अस्ति मतलब अस्ति मीन्स होना, रूपम मतलब रूप, कि आपके समान दूसरा, अपरम मतलब दूसरा, अपन बोलते ना ये निज पर शासन फिर अनुशासन, तो पर मीन्स दूसरा, कि आपके समान दूसरा कोई रूप ही नहीं है। तो प्रश्न होता है क्यों नहीं है? तो उसका भी समाधान दिया आचार्य मांतु जी ने। क्या लिखा कि तावंत एव खलु तेप्यणव पृथिव्याम, कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जो अणवह मीन्स परमाणु है, वो परमाणु तावंत उतने ही थे। कितने? जितना आपका शरीर का निर्माण हो सके उतने ही पृथ्वी पर परमाणु थे, इसीलिए आपके समान दूसरा कोई रूप इस संसार में नहीं है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु तेप्यणव पृथिव्याम, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। एक बार अर्चना जी इसका उच्चारण करेंगे ताकि आप सबको अच्छे से थोड़ा माइंड में चला जाए, और उसके बाद में हम इसका मीनिंग बताते हैं एक एक शब्द का। अर्चना जी हैं? नहीं, मेरे ख्याल समझ जी नहीं होंगी अभी वो। मीनल, अर्पिता कोई नहीं है? नैना जी हैं? नहीं, कोई भी नहीं है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा will you read? तितिक्षा को शायद पीछे का नहीं की है अभी। नहीं, ये पहली बार मैंने देखा है। हाँ ए, हाँ ए, मैं पढ़ूं सन्नी शब्द? जी इनको हाँ, ही बोल शांता रहे जी हैं। स्टार्ट कीजिए, शांता जी कीजिए ट्राई कीजिए। है ये शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु तेप्यनव पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। वेरी नाइस। तो समझ जी एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ, कहो तो। हाँ, लास्ट में पढ़ा दूं आपसे। चलो ठीक है। हाँ। O extraordinary crown of the three realms, the number of atoms having the glory of equanimity had constituted your body. All those atoms were used up in the constitution of your body, and that's why there is not anyone superior to you in this universe. यानी तीन जगत में असाधारण तिलक के समान वीतराग आभा वाले जिन परमाणुओं से तुम्हारा निर्माण किया, वे परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही हैं, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारे समान दूसरा रूप वाला कोई नहीं। त्रिभुवनैक यानी तीन लोक में अद्वितीय, अनपैरेलल्ड, द थ्री वर्ल्ड। ललाम भूत, हे सौंदर्य के स्वामी, ओ लॉर्ड ऑफ ब्यूटी,
यही जिन द शांत राग वीतराग ऑफ एक्सट्रीम सेरेनिटी, रुचि भी आभा वाले रेडिएंट परमाणुओं से विथ पार्टिकल्स, तुम यू निर्मापित बनाए गए आर मेड ऑफ ते वे दोस अणवः परमाणु पार्टिकल्स अपि भी थु खलु निश्चय एविडेंटली तावंत उतने ही ओनली सो मेनी एव ही थे मस्ट बी यत क्योंकि बिकॉज पृथ्वी पर ऑन द अर्थ ते आपके टू यू समान सिमिलर अपरम रूपम दूसरा रूप अनदर पर्सन न अस्ति नहीं है डज नॉट एक्सिस्टिंग। तो अब अरविंद भाई एक बार उच्चारण कीजिए और उसके बाद में हम आपका ब्रेकआउट रूम तैयार करते हैं। अरविंद भाई यू कैन रिसाइट, यू कैन रीड। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यनवा पृथिव्याम जत्ते समानमपरम न विरूपमस्ति। बाकी सब अपने अपने रूम ज्वाइन करेंगे। शांता जी आप भी कोशिश करना टीचिंग कराना। दीक्षा जी जी आपको 2 श्लोक अच्छे से आ गए ना? पहले 2 वाले, हाँ पहले 2 वाले टीचिंग करा दो आज दूसरे नए लोगों को, है ना? संतोष बेन आप भी कोशिश कीजिए, मंदावी नमस्कार। आप भी कोशिश कीजिए रूम ज्वाइन करके उनको टीचिंग कराओ। मैं आ रही हूँ वापस साथ में भी आपके। हेलो, सारे मेन रूम में आ गए वापस, क्या हुआ? मैं तो तुम रह गए। हैं? नहीं, कामनी भी है। अतुल भाई थे मेरे साथ, वो पता नहीं एकदम छोड़ के चले गए। मैं वापस आ गई इधर। अब हम दोनों ही हैं। कामनी भी गई, अमित भी आ गए। अमित को टोचा को ना जी जय जिनेंद्र। मैं अमित कोटेचा हेलो मेरे जिनेंद्र। साथ बैठा हुआ हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग बहुत नए हैं तो ये काफी। आपको देखा था उस दिन आपका भी सेलिब्रेशन कर रहे थे ना। हाँ अच्छा जय जिनेंद्र, कहाँ से हो? हम नागपुर के हैं, यहाँ अच्छा। हारबोन में रहते हैं। हाँ हार्नबोर्ड में, हाँ जी, बर्मिंघम में।
हाँ जी, अरे बेटे बताया नहीं कभी, मेरा नाम अरविंदर जैन है। जय जिनेन। हाँ जी, तो आप जैन आश्रम से जुड़े हुए हैं कि नहीं? अभी अभी जुड़े थे, बस कोरोना से पहले जुड़े थे, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन और वो अमित हाँ जैन, हाँ हाँ हाँ। पर उसके बाद मौका ही नहीं आया, कोरोना जब से चालू हो गया तब से। तो अच्छा, तो वाइफ प्रतिभा जैन, वो भी डॉक्टर। प्रतिभा? हाँ, तो अच्छा, मेरी बड़ी सिस्टर का नाम प्रतिभा है इसलिए। अच्छा, प्रतिमा या प्रतिभा? प्रतिमा। माँ, चलिए बहुत प्रतिभा है। हाँ, मूर्ति। तो क्या करते हो बेटे यहाँ पर? मैं सर्जन हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर अच्छा, तो हार्बर में रहते हो? हारबोन में रहते हैं जी। हाँ, कितने देर के लिए आए हो? हाँ जी, कितनी देर के लिए आए हो? मैं तो काफी सालों से यही हूँ। मेरे यूपी को, में सेटल हो? हाँ, मेरे को 17-20 साल हो रहा है अभी। अरे 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 अरे, तो अरे बात नहीं हुई तो यार, सिद्धार्थ को भी, सिद्धार्थ ने भी बताया नहीं आपको? नहीं नहीं, आपको हम जानते हैं जी इसके जैन आश्रम के थ्रू, पर हाँ हमारा परिचय कभी नहीं हुआ। कभी आश्रम में तो नहीं आए ना आप फिर? आश्रम में आए थे जब महावीर जी के जन्म का अच्छा अच्छा हुआ, अच्छा। हाँ वो शायद आखिरी इवेंट था वहां पे। उसके हाँ, बाद उसके बाद मैं उस समय आउट ऑफ द कंट्री था। तो अमित जी, अब रेगुलरली मिलना है। अब हाँ, मेरा नंबर आपको शायद वो ऊपर लिखा हुआ है, वो देख लो मेरे, वो लिखा हुआ है, वो लिख लो, हाँ जी, एक मिनट। 0787229। और मेरी ईमेल भी है। तो 5, 6। थैंक यू जी। वो मैं क्या करूंगा, मैं आपका नंबर जो अपने जैन आश्रम का है ना, उसके में डाल दूंगा, जो भी हमारा होगा वो आपको पड़ता रहेगा। और प्रतिमा का भी नंबर ना मुझे साथ कर देना। वो भी दोनों को- डॉक्टर हाँ, है मैं या आपको, क्या है? आपकी वाइफ भी डॉक्टर है? हाँ जी, वो डॉक्टर है, वो पीडियाट्रिशियन है, अच्छा, वो तो वो उधर आती है न्यूनेटोलॉजी समनी जी के स्पेशलिस्ट। प्रोग्राम में भी? वो और कोई अटेंड करती है ये ऐसे जूम पे? हम लोग बस यही है प्रोग्राम, इसके बारे में अच्छा, हमको नहीं, पता चला था तो बच्चों को थोड़ा भक्ता। एक और ये वो करती प्रतिभा है, वो प्रतिभा है। ओके, ये प्रतिभा बेटे, है, कोई नहीं। अपना नंबर, प्रतिमा का नंबर, दोनों है ना मुझे दे देना। देन आप बोथ ऑफ यू। हाँ जी, अच्छा, और बच्चे कितने हैं बेटे? हाँ जी, बच्चे कितने हैं? आदि है ना, 2 बच्चे हैं। हाँ, ये आदि है, आदिनाथ जी के ऊपर इनका नाम रखा हुआ है। हाँ, तो इनको भक्तांबर के साथ जोड़ दो, आदिनाथ जी को। हाँ, वही कर रहे हैं, कोशिश वही है। ये अनय है हमारा छोटा बेटा। अरे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। प्रतिमा आज ड्यूटी पे है। तमनी जी ना सैटरडे को क्लास लगाते हैं इन बच्चों को, उसमें डाल दो, शुरू कुछ ना कुछ सीख लेंगे। अच्छा, वो क्लास का मेरे को आइडिया नहीं है, नहीं तो वो उसका ना लिंक डिफरेंट है, We will ये get in लिंक touch. नहीं है, उसका लिंक डिफरेंट है। थैंक यू जी। I will give you the information बेटे। ये मेरी वाइफ है, वैसे ये मेरी वाइफ है रेणुका जी टापर। घर में ही रहते हैं, वैसे मिलते ऐसे ही हैं। नहीं, हम कई सालों से बर्मिंघम में जैन आश्रम का हमको काफी लेट पता चला, यानी मैं यहाँ पे तो बर्मिंघम में कितनी देर के हो? मैं तो 2007 से बर्मिंघम में हूँ। अरे यार, इतनी, मेरा ख्याल एक दफा आपकी बात हुई नहीं थी, मेरा लगता है मुझे को somehow। अमित एक बार कभी मिल नाम तो। हाँ, तो आप दूसरे ये अमित को बच्चे जानते? आपके इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे धर्म में? हाँ जी, बच्चे धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं? हाँ जी, हम लोग है ना नौकार मंत्र और महावीर जी का ये सब हम करते हैं, भक्तामर रोज घर में बजाते हैं, ये सब करते हैं जितना समय मिल पाता है उसमें। नहीं, उनको इंटरेस्ट है तो ही फायदा ना इधर सीखने में। इंटरेस्ट तो है, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्रिएट इंटरेस्ट डालना पड़ता है बेटे, है ना? हाँ, अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या नाम है, तो इतने सालों से रह रहे हो, हाँ जी। कोई कांटेक्ट कभी यार एक्सीडेंटली मिल जाता है? दैट्स आई एम शॉक्ड। नहीं, आई एम रियली शॉक्ड, आई डिडंट नो कि अच्छा, आप जहाँ वो सच वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है। मैं यहाँ ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग पूरी यहीं की है मैंने, लंदन में और बर्मिंघम में, और 4 साल से यहाँ कंसल्टेंट हूँ मैं। फिर तो फुल टाइम है यहाँ पर? हाँ जी। वो तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए 2-4 महीने यार, फिर तो जरूर मिलेंगे यार बात। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं तो यही है ना, अब तो यही अपना देश बन गया है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए पूछा, क्योंकि जहाँ मिलता हूँ डॉक्टरों को, वो आते हैं 2 साल के बाद चले जाते हैं ऐसे। और डॉक्टर को फिर तो काफी डॉक्टर को जानते हो यहाँ पर? हाँ, मैं अब जैसे एक शिव जैन है, उसको जानते हो? हाँ जी, शिव जैन मेरे कोलीग है। हाँ, वो भी ऑर्थोपेडिक है ना? वो भी ऑर्थोपेडिक है।
मैं भी उनके जैसे हिप नी रिप्लेसमेंट ही करता हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा, वही वेरी स्पेशलाइज। गुड, वेरी गुड। और वाइफ कौन से हॉस्पिटल में काम करती है? वो अभी उसके फाइनल ईयर में है ट्रेनिंग के, तो वो अच्छा अभी वोल्वरहैम्पटन में है। अच्छा, अभी वो 1 साल में कंसल्टेंट बन जाएगी वो भी। दैट्स वेरी गुड। और आप कौन कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं अभी तो सोलियल में था, पर अच्छा, अभी 4 हॉस्पिटल कवर करता हूँ, हार्टलैंड, सोलियल, गुड होप और क्वीन एलिजाबेथ। हम गुड होप के पास ही हैं। अच्छा गुड होप जहाँ हमारे घर से 3 किलोमीटर मुश्किल होगा। अच्छा, तो मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस वहाँ लिटिल एस्टन में है, अच्छा, और स्पायर में, और गुड होप में कुछ हाँ, सेशंस करता इंस्पायर में मेरी वाइफ का भी ऑपरेशन हुआ 2 साल पहले, में इंस्पायर में हुआ था। हूँ। और अच्छा, बैनर्जी था मेरे ख्याल वहाँ पर। ब्रायन बैनर्जी, हाँ। रिटायर्ड येट? वो पार्ट टाइम चले गए हैं अभी, यानी सेमी नाइस रिटायर्ड। नाइस। आप डॉक्टर मालू को जानते हैं? मनोज मालू? नहीं, उनको नहीं जानता। अच्छा, इसी प्रोग्राम में अभी कामनी थी, वो भी डॉक्टर है, अच्छा जी, कामनी जैन। हाँ, ये अपने काफी डॉक्टर डेंटिस्ट वगैरह हैं, तो अच्छा। नाइस टू नो है ना अपनी कम्युनिटी बेटे। एब्सोल्युटली, हाँ इसीलिए हम लोग एफर्ट कर रहे थे। फिर ये पहली बार आश्रम में वो जैन भगवान जन्म के दिन आए थे हम लोग, दीवार। हाँ, तो मैं यही देखा भी इतने साल, तो मैं तो क्योंकि छोड़ता नहीं हूँ, पकड़ लेता हूँ इधर उधर से। आप कैसे नेट से निकल गए? ठीक है वो।